Good afternoon, students. My name is Rakesh Kumar Padhi, and we are going to study electromagnetic induction, lecture number 1 today. So, our story starts in 1808, 29th February in London, when a 20-year-old boy goes to attend the lecture by Sir Humphrey Davy. So, probably that is one of the most significant dates in development of the concepts of electromagnetic induction according to me. So, वो लड़का he was only 20 years at that time and hardly 1 or 2 years older than you people. What he does is attend a lecture of Sir Humphrey Davy about generation of electricity from cells or batteries, and the story ends around 1943 winter when Nikola Tesla imagines a world of clean electricity. क्योंकि उससे पहले क्या होता था, if we go back to the early 20th century London, all the bulbs were lit by gas. हर जगह ऐसे गैस के पाइपलाइंस होते थे और वो गैस सप्लाई होता था और वो गैस जल के ऐसे लाइट्स आते थे. So this kind of lights, this supply of electricity, alternating current, nothing was there at that time. So Nikola Tesla thought of a world जहां पे पावर स्टेशन उसी जगह नहीं होना चाहिए जहां से पावर सप्लाई हो रहा है. हम लोगों का पावर स्टेशन कहीं भी हो, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर, एंड स्टिल वी आर एबल टू गेट electricity to our homes. So all these things were possible because of the concept of electromagnetic induction. So what we are going to study today, we are going to cover the experiments that were done by Faraday and Henry. So Henry was also experimenting independently on the same concepts of electromagnetic induction. तो वो हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे. Then we will study the concept of magnetic flux. Then we are going to study Faraday's laws of electromagnetic induction, and then finally we finish our lecture with Lenz's law and conservation of energy. So let's start with the experiments done by Faraday and Henry. So what experiments were done by Faraday and Henry? He took a small current carrying loop and connected that loop to a galvanometer. He took another loop took a bar magnet and he started moving the magnet towards the loop. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक छोटा सा डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में. When we repeated the same experiment by changing the direction of the magnet, so what he observed कि यहाँ पे सेम चीज हो रहा है, the deflection is also happening but it is happening in the reverse direction. So definitely it has something to do with the approaching of the north or the south poles of the permanent magnet. He expanded that experiment. उन्होंने एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक्सपेंड किया. उन्होंने सोचा कि एक और लूप लेते हैं और यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट, इट टूक एन electromagnet. And he started moving that electromagnet. The same thing happened. When he started moving the electromagnet, there was a deflection. When he changed the polarity of the battery, there was a movement in the opposite direction. तो यहां से ये सब चीजों से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि there is something that is related to movement of this, either it is a permanent magnet or it is an electromagnet. उन्होंने एक और चीज की, he started to keep this stationary and started moving this also. The same thing happened. There was a deflection, and when we moved in the opposite direction, the deflection was in the opposite sense. उन्होंने उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया
he took a loop, he took another loop, जब उन्होंने इसको स्विच ऑन किया देयर वाज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हियर, यहां पे डिफ्लेक्शन परमानेंट नहीं था, दिस डिफ्लेक्शन वाज मोमेंटरी। देन द गैल्वेनोमीटर अगेन अलाइंड टू इट्स न्यूट्रल पोजीशन। जब उन्होंने स्विच ऑफ किया द डिफ्लेक्शन वन इज द ऑपोजिट सेंस। इसका मतलब ये था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मोशन ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी था कि ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो रहा है, उस स्विच ऑन और स्विच ऑन ऑफ के ड्यूरेशन में भी ऐसे थोड़े से टाइम के लिए कुछ हो रहा है जिसके वजह से यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है। तो व्हाट ही डेवलप्ड हिज थ्योरी वाज कि एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय phi E इक्वल टू इंटीग्रेशन E dot ds depending on the surface. If it is a closed surface, it is a closed integral. If it is an open surface, it is an open integral. Normally the flux is taken for a closed surface because Gauss law cannot be applied to open surfaces. तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, एग्जैक्टली वही चीज हम लोग कर सकते हैं phi b इक्वल टू इंटीग्रेशन b डॉट ds। बट ये मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स से आई टेक ए स्मॉल सरफेस, थोड़ा सा ऐसे सरफेस ले लेते हैं हम लोग। देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड हियर, what I want to do is, let's say I start counting the number of field lines that is passing through the surface. अब काउंट तो मैं कर नहीं सकता, let's say this is एक आसान सा चीज कंसीडर करने के लिए b को कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग। तो what I am going to do is I am going to count the number of field lines. अब field lines काउंट कैसे करूं, इतने सारे तो field lines है, the technically the number of field lines is infinity. Let's say I take a very small surface, उसके थ्रू भी field lines infinity हो सकते हैं। So what I am going to do is I am going to take a small surface so that this ds tends to 0. अब मैं क्या कर सकता हूं, उसके थ्रू जो फ्लक्स है स्मॉल फ्लक्स d phi that can be defined as b dot ds. Now we have already studied the direction of the surface. ये जो सरफेस होता है इसका हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन होता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट करने का भी एक रीजन है, बिकॉज सोचो कि ये सरफेस को हम लोग थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो इफ वी टिल्ट दिस सरफेस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग क्लियरली डिक्रीजेस। अगर ये सरफेस को हम लोग ऐसे पूरा सीधा कर देते हैं तो जो सारे जो फील्ड लाइंस क्या होंगे वो ऐसे ऊपर से और नीचे से निकल जाएंगे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इज 0। तो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली b ds cos theta, where this theta is the angle between the outward normal vector and the magnetic field vector. Okay, so the magnetic flux is nothing but flux is the total magnetic field lines crossing through a surface. So this is nothing but the total number of magnetic field lines crossing through a surface. Obviously ये d phi ऐसे आ गया, तो यहाँ से हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो दिस इज एक सिंपल सिनेरियो में हम लोग सीधा लिख सकते हैं phi इक्वल टू p a cos theta. This is the simple scenario. Or we can integrate and write phi equal to integration b dot ds. So this is the definition of magnetic flux. अब फैराडे ने क्या कहा, what he said is कि जब भी जो वो सब चीजें हो रहा था, what was happening here is what he proposed is ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जनरेट हो रहे हैं, the number of field lines that are crossing this loop that is changing when there is a movement here. वो यहां पे भी हो रहा है
वो यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है? बिकॉज इनिशियली हम लोगों का यहाँ पे फाई क्या होता था? 0 होता था। व्हेन वी स्विच्ड ऑन देयर वाज ए मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर इसको क्रॉस कर गई, and because of that there was a momentary field deflection. Once the current is established in this loop, वहां पे I इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। I कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट B इज इक्वल टू आल्सो कांस्टेंट, और वो भी कांस्टेंट हो जाने की वजह से द चेंज इन फ्लक्स हियर इज दिस d phi is 0. So what he observed is this EMF which is generated in this coil or this coil or this coil, this is all because of the change in magnetic flux. So what Faraday proposed is the EMF generated in a coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Handwriting is not that good because this is my first time teaching in front of a camera. I hope I'll do better. So we can write this here, E equal to d phi by dt. Proportionality constant has been 1 in SI system of units, and there was a minus sign here. And what he proposed is if there are n number of loops, then E equal to minus n d phi by dt. This is the formula that was given by Faraday in his law of induction. So why this minus sign? तो थोड़ा सा सस्पेंस है, तो सस्पेंस रहने देते हैं. Eventually we will figure it out why this minus sign has been used here. So let's go to a couple of questions. एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. 2022 का ये सवाल है नीट का. A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of the magnetic field, plane of the loop is perpendicular to the direction of the magnetic field. Exactly वैसे जैसे मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ किया था. ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड. दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या है? रिमेंबर, ये जो है दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर. तो जो एन कैप का डायरेक्शन जो है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है. तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0. cos थीटा हो जाएगा अपना 1. अब साइड दे दिया है 1 मीटर, तो हम लोगों का एरिया क्या आ जाएगा? एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ थोड़ी होगा वो, लेंथ इनटू लेंथ, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर लूप. तो वो हो जाएगा 1 इंटू 1, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. अब इसकी तो कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, बिकॉज फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. वो तो ऐसे ही तुम लोगों को गुमराह करने के लिए दिया है. 10 सेकंड तुम लोग वेस्ट करोगे कि ये 1 ओम दिया क्यों है, इसका इस्तेमाल मैंने किया नहीं. ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा को भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो चीजें दिया है वो सारी चीजें यूज हो आंसर तक पहुंचने में. दिस इज नेवर नेसेसरी. दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोबेबली तुम लोगों का टाइम लॉस करने के लिए. अब बी तो दे दिया है, तो हम लोग फ्लक्स आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं. बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. तो बी हो गया अपना 0.5 इंटू एरिया आ गया अपना 1 इंटू कॉस थीटा 1, वो हो जाएगा 0.5 वेबर. So that is the unit of magnetic flux. So that's a little bit I have skipped here. Unit of magnetic flux is Weber. तो यहां से B का एक और यूनिट भी आता है, the unit of जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी, उसका हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां से क्लियरली देखा था दिस फाई इज वेबर, अगर हम लोग फाई बाई एस कर देते हैं तो यहां से हम लोग अगर देखें तो दिस बी इज इक्वल टू फाई बाई ए कॉस थीटा। दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी और दिस इज वेबर एंड मीटर स्क्वायर, तो जो बी का जो यूनिट हो जाएगा दैट विल बी वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अनदर यूनिट दैट हैज बीन यूज्ड। तो जो टेस्ला है वो एक यूनिट है, दिस इज ऑल्सो अनदर यूनिट। दोनों यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं पाई के लिए। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन में एक मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग कर देते हैं। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ए कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द फोर्थ सेकंड विल बी। चौथा सेकंड में वो पूछ रहा है, फोर्थ सेकंड का क्या मतलब है? तो हम लोग थोड़ा सा अभी अगर रिवाइंड करें तो इस तरह का वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 12th सेकंड, वो ऑलरेडी। तो फोर्थ सेकंड मतलब कि t इक्वल टू 3 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में क्या होगा। अब ऑब्वियसली हम लोग E का तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, उसका हम लोग अभी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो दैट विल बिकम e बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। तो ये अपना हो जाएगा 10t प्लस 3, ये आ गया अपना e। अब ये क्या पूछ रहा है कि फोर्थ सेकंड मतलब जो एग्जैक्टली 4 सेकंड में जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा that will be 10 into 4 plus 3, so that will be 43. E3 exactly at 3 second at t equal to 4 second at t equal to 3 second. E3 will be 10 into 3 plus 3, that will be 33. So E at 4th second that will be equal to E4 minus E3, that will become 10 volt. E का तो ऑब्वियसली ये मैथ का हम लोगों को यूनिट पता ही है, that is equal to 10 volts. Okay, so let's move on to our next question. The total charge induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends on. तो जो पूरा चार्ज जो डेवलप होता है दिस Q किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को क्या था, दिस Q इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt, ऐसा था कि नहीं? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो उससे हम लोगों का आ गया Q इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। ये जो I है, अभी हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इक्वल टू V बाई R। द रीजन वाई आई एम टेकिंग स्मॉल I एंड स्मॉल v is because the variable that I am taking here, it may be constant, it may not be constant. Normally हम लोग क्या करते थे, कैपिटल I और कैपिटल V यूज करते थे to write Ohm's law because those currents and voltages those are constant. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे करंट, वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ वो है that may be constant, that may not be constant. So that's why I am using the small letters. अब I equal to V by R अगर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन V by R dt। अब R तो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन V dt। जो V है वो क्या है, दिस V इज नथिंग बट द EMF। तो जो E का हम लोगों का फॉर्मूला था दैट इज डी फाइव बाई डी टी, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। so that will become, obviously I am talking about the magnitude here, 1 by r integration d5 by dt into dt। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन d5 into 1 by r। so that is the charge developed in a current carrying conductor loop। अब इंटीग्रेशन d5 मतलब क्या है, दिस q is equal to, इसको हम लोग अगर लिख सकते हैं d5 phi 2 to phi 1। so this is the total change in magnetic flux। पूरा जो टाइम पीरियड में जितना जो फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट इज द टोटल चेंज इन फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू द
कंडक्टर, ये थोड़ा सा ज्यादा पुराना क्वेश्चन है 1992, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसको रिलेट करके हम लोग छोटे मोटे वो सब भी डाल सकते हैं, जो आगे भी क्वेश्चन आ सकता है 1/r इंटीग्रेशन d5 में। सो दिस फॉर्मूला इज वर्थ राइटिंग डाउन। इसको हम लोग लिख सकते हैं q इक्वल टू 1/r इंटीग्रेशन d5। तो जो अगर फाई अगर कुछ चीजें दिया हुआ है तो वही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगर सोचो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दिस रेजिस्टेंस इज गिवन एज 5 ओम एंड आई विल आस्क द q। फोर्थ सेकंड ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, दिस q इक्वल टू 1/r हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 3 to 4। तो फाई जो है d5, see this d5 is 5t square plus 3t plus 16। तो ये अपना आ जाएगा 1/5 5t क्यू बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 16t। तो यहाँ पे हम लोग 3 to 4 t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 4 डाल देंगे, तो द आंसर विल बिकम समथिंग लाइक दैट, जो अपना कूलम में आ जाएगा। तो आई एम लिविंग अ लिटिल बिट फॉर यू पीपल, थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी कर लो, सब मैं ही थोड़ी करता रहूंगा। नेक्स्ट विल गो टू लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो माइनस जो हमने पढ़ा हुआ था, दिस E इक्वल टू माइनस d5 बाई dt। अगर n लूप से तो यहाँ पे हम लोगों का एक n आ जाएगा। ये माइनस क्यों आ रहा था? लेंज गेव द एक्सप्लेनेशन टू दिस थिंग। व्हाट ही टोल्ड कि द इंड्यूस्ड EMF at any scenario is always in such a direction that it opposes the cause that is causing it। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का लूपिंग मैंने कर दिया। तो द कॉज दैट इज कॉजिंग इट, तो कौन सा कॉज है यहाँ पे? कॉज क्या है? कॉज इज चेंज इन फ्लक्स। जो चेंज इन फ्लक्स क्या कॉज कर रहा है? कॉजिंग इंड्यूस्ड EMF। तो 5 में चेंज की वजह से अपना EMF इंड्यूस हो रहा है। तो व्हाट ही टोल्ड कि अगर सोचिए कि दिस इज ए लूप, एकदम आराम से यहाँ पे लूप लिख दे। लेट्स से दिस पेन इज ए मैग्नेट, जिसका ये जो पॉइंटेड टिप, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। लेट्स से दिस इज ए लूप। ओके, आई एम मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये 3 डायमेंशन में है, आई एम मूविंग दिस मैग्नेट लाइक दिस। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो लेंज लॉ क्या कर रहे हैं कि यहां पे ऐसे EMF जनरेट होगा जो कि इस कॉज को अपोज करेगा। इस कॉज को मतलब क्या है? इफ आई एम मूविंग दिस, इट विल ट्राई टू मूव इट बैक। अगर वो इसको पीछे धकेलना चाहेगा तो यहाँ पे एक और नॉर्थ पोल चाहिए ना मुझे। तो जो नॉर्थ पोल होगा, अगर तो पीछे साउथ पोल चाहिए। हमारा थंब रूल क्या कहता है? इन दिस डायरेक्शन दिस इज द नॉर्थ पोल, इफ दिस इज ए लूप, तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट प्रोडक्शन होगा। दैट इज प्रीटी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे एक n लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर बदल देंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर सेम चीज हम लोग अगर रिपीट करते एक और लूप के लिए, यहाँ पे हम लोग साउथ पोल लेके जाते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे s लिख लेते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ये जो मूव हो रहा है, देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट इज कॉजिंग इट।
In this case, let's say this is my muscular force. I am using my muscular energy to move this. तो ये जो एनर्जी है इसकी वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है. दैट ईएमएफ विल मेक द करंट फ्लो इन दिस कॉइल, एंड इन दिस कॉइल जो हीट लॉस होगा I square RT, thus heat loss will be exactly equal to the muscular energy I am use. जो muscular energy में यूज कर रहा हूं वो इस कॉइल में हीट लॉस के साथ एग्जैक्टली इक्वल होगा, पूरा बराबर होगा. You can do all the corresponding calculations for motional EMF. एक हम लोग छोटा सा रॉड लेके उसको मोशनल EMF कितना आ रहा है, वहां पे वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, करंट कितना जनरेट हो रहा है, एंड वी कैन कैलकुलेट द करंट एंड हीट लॉस इक्वल टू I square RT. We will see कि the work done हो रहा है, that work done is exactly equal to the work done, जो एनर्जी हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं. तो we'll make it to the next class. तो अभी के लिए हम लोगों को हमने क्या सीखा, the summary of all the things that we have studied. So the first thing we have studied is the experiments suggesting the induced EMF. जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, स्टडीड अबाउट द लूप्स. जो लूप्स हैं वो लूप्स में ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हम लोगों ने उसको स्टडी किया. पहले वी ट्राइड टू मेक ए मूविंग परमानेंट मैग्नेट, देन वी मेड ए मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. फिर हम लोगों ने एक स्टेशनरी कॉइल को लिया, उसमें चेंजेस करने की कोशिश की, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया. पाई इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डॉट ds. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फाराडे का जो ये जो है, दिस इक्वेशन इज इवेंचुअली altered a little bit by Maxwell, and that became the Maxwell Faraday equation. तो याद रखना, इससे हम लोगों का मैक्सवेल फैराडे इक्वेशन आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे. दिस विल बी मॉडिफाइड स्लाइटली टू मेक द मैक्सवेल फैराडे इक्वेशन. इंटीग्रेशन E डॉट ds से एक इक्वेशन आएगा, इंटीग्रेशन B डॉट ds से एक और इक्वेशन आएगा. टोटल 4 मैक्सवेल इक्वेशन है. दोज आर द 4 मैक्सवेल इक्वेशन, जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा कि देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. जो भी दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, दे आर सैटिस्फाइंग दोज 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस. फिर हम लोगों ने पढ़ा द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो इंडक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स. कोई भी पैरामीटर की वजह से चेंज हो, तो ऑब्वियसली हम लोग अगर बी ए कॉस थीटा हो, एक तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया, एरिया को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल ही है नॉर्मली. तो ऐसा थोड़ी हम लोग ऐसे लूप लेके उसको बड़ा छोटा करते रहेंगे, वो तो होगा नहीं नॉर्मली. चेंजिंग बी इज ऑल्सो एक्चुअली डिफिकल्ट. तो हम लोगों का जो रियल लाइफ में जो जनरेटर्स होते हैं वो नॉर्मली इसी से ऑपरेट होते हैं. व्हाट वी डू इज वी चेंज द थीटा. एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये. दिस थिंग वाज आल्सो डेवलप्ड बाय फैराडे. उन्होंने पहला जो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था, दे यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग द थीटा. वो एंगल को चेंज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करते हैं. दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. एंड देन वी स्टडीड अबाउट लेंज लॉ. लेंज लॉ दैट एक्सप्लेन्ड व्हाई देयर इज ए माइनस साइन. द माइनस साइन का मतलब है कि ये जो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी हम लोग लिख रहे थे, ये जो डी फाई में जो चेंजेस होंगे, ये ईएमएफ का जो चेंजेस होंगे वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट. तो दिस विल ऑपोज दैट. तो जो भी हम लोग वर्क डन करेंगे टू चेंज द फाई, एंड दैट विल बी डिसिपेटेड एज एनर्जी आफ्टर द चेंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेंज लॉ एंड conservation of energy. So that's all for today. Thank you.